Okay, students, so this is about object-oriented programming. So first of all, we'll see that what are the topics we need to cover in this particular video. First, we will see what are the different programming paradigms. Now, what do you mean by paradigm first of all? So paradigm means different types of programming. So from the ancient times till now, when the programming was introduced, how many different programming types evolved and what we are following now. So we have to study all these types: monolithic, procedural, structured, and object oriented. Then we will cover the basics or features of object oriented programming, which is nowadays used. In this, we have to study what is class, what is object, methods, message passing, inheritance, polymorphism, the features. These are the features of OOP: containership, reusability, delegation, data abstraction, and encapsulation. Then in detail, we are going to study about classes and objects and how do we create classes, class method, self object, what are the class variables, object variables, what is the difference between them. Then public and private members, class methods. All these topics we need to cover in this particular unit. Okay, so first of all, we'll start with the basic or the first type kind of programming paradigm, that is monolithic programming, which is not followed nowadays, rarely followed, but we need to study that what is monolithic programming actually. So ऐसे programs जो कि हम लोग एकदम एक ही जगह पर सारा कोड लिख देते हैं, या ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जिसमें कि हम लोग सीक्वेंशियल कोड यूज करते हैं, जो भी चीज हमने लिखी वो सीक्वेंस के फॉर्म में होती, वट एवर वी आर राइटिंग दैट इज इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंस, and the data we are using is global data. That is a monolithic programming. And global data का मतलब है कि यहाँ पे कोई अलग अलग functions हम नहीं create कर रहे, जो भी डेटा होगा वो एक्सेस हो सकता है और मॉडिफाई हो सकता है किसी भी प्रोग्राम के किसी भी पर्टिकुलर पार्ट में. तो जो भी प्रोग्राम होगा वो एक ही जगह पूरा प्रोग्राम लिखा जाएगा, और जो भी डेटा होगा वो ग्लोबली अवेलेबल होगा उस पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी. ओके, सो जो मोनोलिथिक प्रोग्राम्स होते हैं उनका सिर्फ वन प्रोग्राम मॉड्यूल होता है, इसके अलग अलग मॉड्यूल्स नहीं होते, और इसको हम डिवाइड नहीं करते अलग अलग पार्ट्स में. इट इज नॉट डिवाइडेड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मोनोलिथिक प्रोग्रामिंग में हम कुछ भी डिवाइड नहीं करते हैं, जो भी प्रोग्राम होता है वो एक ही जगह लिखा जाता है सीक्वेंस के फॉर्म में, तो जो भी एग्जीक्यूशन होगा वो सीक्वेंशियल ही जाएगा. इट डज नॉट सपोर्ट कॉन्सेप्ट ऑफ सब रूटीन. सब रूटीन्स का मतलब यही है कि एक जगह से दूसरी जगह हम ट्रांसफर नहीं होते, जो भी है वो सीक्वेंशियल मोड में ही जाता है. इसीलिए और जो भी एक्शंस हैं एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए वो एक ही एप्लीकेशन में एम्बेड किए जाते हैं. सो यू कैन see the statement, therefore all the actions required to complete a particular task are embedded within the same application itself. Now इन रीजंस की वजह से ये जो प्रोग्राम है, मोनोलिथिक प्रोग्रामिंग है, इसमें जो प्रोग्राम होता है उसका साइज जो होता है वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है. एंड क्योंकि प्रोग्राम का साइज बहुत बड़ा होता है, सो उसको मैनेज करना, मेंटेन करना और उसमें एरर्स फाइंड आउट करना, मतलब डीबगिंग करना और उसको मेंटेन करना, इट क्वाइट बिकम्स डिफिकल्ट. Okay, so this was the monolithic programming. In the right side you can see the assembly. इसका example है assembly code और assembly language code. इस assembly language में instructions use किए जाते हैं कुछ भी operation perform करने के लिए. Let's say मुझे sum करना है दो numbers का 10 and 20, so we have used ADB and BDB20, then sum DB, then move AX. मतलब इसमें registers and ये सारे statements use किए जाते हैं so that sequential mode में हमारा operation perform हो सके. Now next category है या next programming paradigm है procedural programming. So procedural programming क्या करता है कि यहाँ पे जितने भी programs लिखे जाते हैं वो logically steps में लिखे जाते हैं, और ये directly जो भी device है उसको instruction देता है कि कैसे कोई एक particular task जिसके लिए program लिखा गया है वो complete करना है. तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम जो मोनोलिथिक में प्रॉब्लम थी कि रिपीटिशन ऑफ कोड के चांसेस ज्यादा है क्योंकि सीक्वेंस में सारा डेटा जाएगा, तो यहाँ पे सब रूटीन्स क्रिएट किए जाते हैं. सब रूटीन्स मतलब एक जगह से दूसरी जगह कंट्रोल ट्रांसफर किया जा सकता है, तो इसके लिए हम सब रूटीन्स यूज करते हैं और वो एक वेल डिफाइंड टास्क परफॉर्म करता है. जो सब रूटीन है
वो दूसरे सब रूटीन को कॉल कर सकता है। अगर एक प्रोग्राम में मल्टीपल सब रूटीन्स है, सब रूटीन्स का मीनिंग है कि मेरे पास एक बड़ा टास्क है, उस टास्क को करने के लिए मुझे अपने प्रोग्राम में कंट्रोल देना है कि यहाँ के बाद अभी कंट्रोल नेक्स्ट यहाँ इस वाले स्टेटमेंट पे जाना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं सब रूटीन्स। तो इस इन सब रूटीन्स को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास अलग टाइप के इंस्ट्रक्शंस इंट्रोड्यूस किए गए थे प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में, जो कि मोनोलिथिक प्रोग्रामिंग में नहीं थे, एंड दोज वर जंप, go to statements and call. All these statements or instructions were included so that जो sequence होता था in execution of instructions का वो change किया जा सके। जो monolithic programming है उसमें तो सब कुछ sequence के form में जाता है, लेकिन procedural में आप अपना control एक जगह से दूसरी जगह transfer कर सकते हो using these particular instructions। इसके example हैं Fortran language and COBOL language, और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, किसी भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आएगा, अगर इस पे आएगा, तो अगर क्वेश्चन आता है तो आपको क्या पहले तो आपको बताना पड़ेगा कि वो कौन से टाइप की प्रोग्रामिंग है, उसका क्या फीचर्स होते हैं, जो कि सारे पॉइंट्स में यहाँ दिया हुआ है, एंड देन आपको उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बताने पड़ेंगे। तो एडवांटेजेस क्या है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के? इट इज रिटन इन सिंगल यूनिट। यहाँ पे भी एक ही यूनिट में लिखा जाता है, ऐसा नहीं है कि हम अलग अलग जगह मॉड्यूल्स की तरह प्रोग्राम लिखते हैं, इसीलिए ये स्मॉल एप्लीकेशंस के लिए बेटर होता है। प्रोग्राम मोनोलिथिक के कंपैरिजन में यहाँ पे लिखना इजी पड़ता है, बट स्टिल इट इज कॉम्प्लेक्स। तो डिसएडवांटेजेस में आप देखोगे तो पहला पॉइंट ही है, राइटिंग प्रोग्राम्स इज कॉम्प्लेक्स हियर। यहाँ पे रीयूजेबिलिटी का कोई कंसेप्ट नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम रिपीटेशन अवॉइड करने के लिए कुछ रीयूज कर रहे हैं। वी आर नॉट रीयूजिंग एनीथिंग। जो भी चीज करनी है सिर्फ हम कंट्रोल ट्रांसफर कर सकते हैं। रिक्वायर्स मोर टाइम एंड एफर्ट टू राइट प्रोग्राम्स। ऑब्वियसली इस तरीके के प्रोग्राम्स को लिखने के लिए ज्यादा टाइम और ज्यादा एफर्ट लगता है, और प्रोग्राम को मेंटेन करना भी डिफिकल्ट जाता है। और यहाँ पे भी जो भी डेटा है वो ग्लोबली शेयर होता है, एंड इसलिए इसमें भी चांसेस होते हैं कि हम ऑल्टर कर सकते हैं प्रोग्राम को मिस्टेकनली। सो ग्लोबल डेटा अगर शेयर्ड है तो ऑब्वियसली अगर किसी ने भी किसी भी डेटा में चेंज किया तो वो सबके लिए चेंज हो जाता है। सो जो भी प्रोग्राम है उसमें जो भी सीक्वेंस के फॉर्मेट में लिखा है, दिस दिस सब रूटीन आफ्टर दिस, और लेट्स से आफ्टर दिस दिस सब रूटीन एंड देन दिस सब रूटीन। सो ये जो सब प्रोग्राम्स हैं वो एक ही प्रोग्राम में लिखे जाते हैं, और ये सारे प्रोग्राम्स एक ग्लोबल डेटा ही शेयर करते हैं। तो अगर ग्लोबल डेटा में कुछ भी चेंज हुआ तो वो सबके लिए होता है, ऐसा नहीं है कि वो एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए होगा, सब प्रोग्राम के लिए होगा। इट विल बी चेंज फॉर ऑल। So next comes your structured programming. Obviously, this is much more advanced than procedural programming and monolithic programming. जो structured programming होती है इसमें हम modules का use करते हैं, इसीलिए इसको modular programming भी बोलते हैं। modules का use करने का meaning है कि यहाँ पे हम अपने प्रोग्राम को डिवाइड करते हैं, जो भी हमारा मेन टास्क है उसको सॉल्व करने के लिए हम उसको सब टास्क में या वी कैन से सब मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं, और फिर हर एक मॉड्यूल को इंडिपेंडेंटली सॉल्व करते हैं, या वी कैन से इंडिपेंडेंटली कोड करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, और फिर बाद में उन सबको इंटीग्रेट कर देते हैं। दैट मीन्स वी जॉइन देम। ओके, सो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग को मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग भी बोलते हैं, और यहाँ पे जो फ्लो ऑफ प्रोग्राम होता है उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास इस तरीके के स्टेटमेंट्स होते हैं, जो कि आपने पाइथन में भी यूज किए हैं। इफ एल्स आपने यूज किया है, व्हाइल लूप आपने यूज किया है। सो these were introduced in structured programming, और इसका जो एग्जाम्पल है वो है सी एंड पास्कल। सी प्रोग्रामिंग एंड पास्कल प्रोग्रामिंग, एंड और भी इसके जैसे हैं, बट बेसिकली स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग सी लैंग्वेज से स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पे जो अप्रोच होती है, द अप्रोच विच इज फॉलोड इन स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग इज टॉप डाउन अप्रोच। सो एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम ऑल्सो कि जो भी आपका मेन टास्क होगा वो टॉप से स्टार्ट होगा, उसको डिवाइड किया जाएगा सब टास्क में। सो अगेन इट कैन बी डिवाइडेड इनटू सब सब टास्क। तो मॉड्यूल्स को यहाँ पे कोड किया जाता है सेपरेटली, मतलब जितने भी मॉड्यूल्स होंगे उनका प्रोग्राम अलग कोडेड होगा, और उसका टेस्टिंग भी अलग होगा, और फिर बाद में सारे मॉड्यूल्स को हम ज्वाइन या इंटीग्रेट करते हैं टू फॉर्म द ओवरऑल प्रोग्राम स्ट्रक्चर। ठीक है, सो इट बेसिकली फोकसेस ऑन स्ट्रक्चरिंग द डेटा। यहाँ पे मेन फोकस है डेटा को स्ट्रक्चर करने में, और जो प्रोग्राम है वो सिंपल सीक्वेंस फॉलो करता है, एंड इट अवॉइड्स यूजुअली द गो टू स्टेटमेंट्स व्हिच वर यूज्ड इन द प्रीवियस, दैट वाज योर procedural programming. Okay, now let's see the advantages and disadvantages of structured programming. तो इसमें advantages बहुत ज़्यादा हैं as compared to monolithic and procedural programming. Sorry. So advantages इसमें क्या क्या है? It is much more efficient
efficient, और इसमें जो programs हैं वो easy होते हैं to understand, to debug and to change. मॉड्यूल्स बनाने की वजह से प्रोग्रामर्स की प्रोडक्टिविटी इन्हांस होती है। बहुत सारे प्रोग्रामर्स जो हैं वो अपने अपने अलग अलग प्रोग्राम पे, मॉड्यूल्स पे फोकस कर सकते हैं, और फिर हम अलग अलग प्रोग्रामर्स के अलग अलग मॉड्यूल्स को एक साथ एक स्ट्रक्चर में कंबाइन कर सकते हैं। और जो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है ये ऑब्वियसली लेस टाइम लेता है टू बी रिटन than other programs, and each module performs a specific task. हर एक मॉड्यूल अपना अपना एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करेगा, और हर एक मॉड्यूल का अपना एक लोकल डेटा भी होगा. ओके, सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग. नाउ लेट्स सी द डिसएडवांटेजेस. सो ये डेटा सेंटर्ड नहीं होता, मतलब कि यहाँ पे जो डेटा है वो सेंटर्ड नहीं होता. सेंटर्ड का मीनिंग है कि सारा फोकस सिर्फ डेटा पे नहीं होता है. ओके, ग्लोबल डेटा जो होता है वो शेयर्ड होता है. यहाँ पे भी एक हमारे पास ग्लोबल डेटा रहेगा जो कि शेयर्ड होगा सारे मॉड्यूल्स को. सो ऑब्वियसली वो भी मॉडिफाई किया जा सकता है. तो अगर एक मॉड्यूल को चेंज नहीं करना बट ग्लोबल डेटा में चेंज हो गया है, तो वो जो डेटा चेंज हुआ है वो सारे में रिफ्लेक्ट हो जाएगा. सो ये एक डिसएडवांटेज है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग का. एंड नेक्स्ट इज मेन फोकस जो होता है, इट इज ऑन फंक्शंस. फंक्शंस मींस ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू मॉड्यूल्स. ओके, नाउ नेक्स्ट प्रोग्रामिंग पैराडिग्म इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो कि ये यूनिट का कोर है और जो सबसे ज्यादा फॉलो किया जा रहा है. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडिग्म जो है, इसमें किस तरीके का ऑपरेशन परफॉर्म होता है. तो इसमें क्या होता है, देयर इज अ लिस्ट एंड द एसोसिएटेड ऑपरेशंस. मतलब एक्चुअल में जो भी टास्क परफॉर्म करना है उसमें हमें क्या परफॉर्म करना है, उससे रिलेटेड क्या क्या अलग अलग एसोसिएटेड ऑपरेशंस होंगे, उन सबको एक कंप्लीट एंटिटी में ट्रीट किया जाता है, और उस एंटिटी को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का नाम इसीलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है क्योंकि एवरीथिंग इज डन यूजिंग ऑब्जेक्ट. ओके, एंड द लिस्ट एंड द एसोसिएटेड ऑपरेशंस आर केप्ट इन क्लास. ओके, एंड क्लास का ही हम क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट. नाउ लेट्स सी व्हाट आर द main features of object oriented programming, which is also said as OOP in short. So सबसे पहले यहाँ पे जो भी programs होते हैं वो data centered होते हैं. So the main focus is on data, what data we are having, and on that data only the operations will be performed. Secondly, programs को divide किया जाएगा in terms of objects, not procedures. जो भी program का division होगा वो objects के format में होगा, ना कि procedures के format में. जो फंक्शंस हैं जो डेटा पे ऑपरेट करते हैं, जो भी फंक्शंस हम बनाएंगे जो उस पर्टिकुलर डेटा पे ऑपरेट करेंगे, उन सबको टाइड किया जाता है, एक ही जगह रखा जाता है विद द डेटा. डेटा इज हिडन एंड नॉट एक्सेसिबल बाय एक्सटर्नल फंक्शंस. जिस डेटा पे हमें काम करना है वो डेटा हिडन रहता है और सारे फंक्शंस को वो अवेलेबल नहीं होता है एक्सेस के लिए. न्यू डेटा एंड फंक्शंस कैन बी इजीली एडेड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. अगर नया डेटा ऐड करना है या नए फंक्शंस ऑपरेशंस ऐड करने हैं किसी टास्क में, तो वो भी इजीली ऐड हो जाता है अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज कर रहे हैं, व्हिच वाज नॉट पॉसिबल इन अर्लियर पैराडाइम. Then it follows bottom up approach. Now in the previous one, structured programming, you have studied the top down approach. हम पहले डेटा लेते थे, फिर उसको ब्रेक करते थे, टास्क लेते थे, टास्क को, तो इट वाज टास्क ओरिएंटेड. ओके, बट जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है वो डेटा ओरिएंटेड है, डेटा सेंटर्ड है. सो यहाँ पे जो अप्रोच फॉलो की जाती है, द अप्रोच फॉलोड हियर इज बॉटम अप अप्रोच फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम. जो भी हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है जिसके लिए हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो अप्रोच फॉलो की जाएगी, that will be bottom up approach. Bottom up means we will start from the lower side. First of all, we will see what is the data available. उस data के basis पे हम उसके functions create करेंगे या modules create करेंगे. We can say functions create करेंगे, और उन functions को हमें कैसे आगे चल के combine करके हमें पूरा task solve करना है. So this is the approach followed. So this approach is bottom up approach. जबकि जो हमने previous वाला पढ़ा था वो हमारा top down approach था. Okay, so this is the features of object oriented programming. तो यहाँ पे जो हमने बोला कि हम जो लिस्ट और एसोसिएटेड ऑपरेशंस हैं उनको एक एंटिटी में रखते हैं जिसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं. सो हम एक ही क्लास के या एक ही entity के we can say the whole class for which we are making the program, we can create multiple objects of the same class, and these objects can interact with each other also. So object of a program interact by sending messages to each other. Let's say we have a program in which we are having a class, and for that class we have 4 objects: object 1, object 2, object 3, object 4 of the same class.
So all these can interact with each other by sending the messages to each other. So that is also known as message passing. Okay, so object oriented programming extends the structured programming. That means जो हमने last में पढ़ा structured programming, उसका ये extended version है. कैसे extended version है? ये क्या करता है? Data और उसके जो भी methods हैं, methods का यहाँ पे meaning है functions. Whatever functions we make for that particular data. तो जो डेटा है और जो फंक्शंस हैं, मेथड्स, उनको कंबाइन करता है, which operate upon the data into a single entity, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट. सो लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल. जैसे कि डेटा को अगर हम अज्यूम करें कि डेटा है लेग्स वी हैव, all of us are having legs. Okay, so legs are used for which purpose? For walking purpose. So walk उसका क्या हो गया? मेथड या फंक्शन, एंड डेटा एक्चुअली में क्या हो गया? लेग्स. So these two will be combined and make an entity, and that entity will be known as object. Okay, so object oriented programming is a programming style which is related to concepts of class. अभी देखो यहाँ पे क्या बोला है कि ये प्रोग्रामिंग स्टाइल है जो कि इन टर्म से रिलेटेड है या इन कंसेप्ट से रिलेटेड है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है क्लास, फिर क्लास के ऑब्जेक्ट्स एंड वेरियस अदर कंसेप्ट्स, जो कि ये है inheritance, abstraction, encapsulation, and polymorphism. Okay, so OOP is all about these terms only: classes, objects, and all these features जो नाम आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, inheritance, abstraction, and so on. So the main aim of object-oriented programming जो अभी हम पढ़ रहे हैं is to bind together the data and the functions. Main objective हमेशा यही रहता है कि जो भी data है available और जो उसके functions है उनको bind करना है and उस पे operate करना है, so that no other part of the code can access this data except that function. जिससे कि उसको बाइंड इस तरह से करना है कि कोई और फंक्शन जो है उसके अलावा जो उस फंक्शन के अंदर है वो उसको एक्सेस ना कर पाए. ओके, now we will move towards the core of object oriented programming, because actually we have to study that only. So the first part of this unit is covered. Now we will see one by one what is class, what is object here. Okay, so let's study or let's define what is class. So class is defined as a user defined data type. It is a data type only, but ये एक ऐसा data type है जो कि कौन define करता है? User. Okay, it is built by user only. So as a user, as a programmer, you will build your own class. Okay, it holds its own data members and member functions. जो भी हम class बनाएंगे, जिस चीज के लिए भी बनाएंगे, उसके अपने डेटा मेंबर्स होंगे. डेटा मेंबर्स मतलब उसका अलग डेटा होगा, वेरिएबल्स होंगे जिसमें हम डेटा स्टोर करेंगे, और उन वेरिएबल्स पे उनके हम क्या क्रिएट करेंगे? मेंबर फंक्शंस. इनको हम मेंबर फंक्शंस या डेटा मेंबर्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो उस पर्टिकुलर क्लास को ही बिलोंग करेंगे. तो इसीलिए हमने बोला कि वो उस क्लास के डेटा मेंबर्स होंगे और उन डेटा मेंबर्स को यूज करके हम उनके फंक्शंस क्रिएट करेंगे. ओके, एंड दीज कैन बी एक्सेस्ड एंड यूज्ड बाय क्रिएटिंग इंस्टेंस ऑफ दैट क्लास. और इन डेटा मेंबर्स को हम यूज कर सकते हैं, या जो उनके फंक्शंस हैं उनको हम यूज कर सकते हैं बाय creating instance of that class, and that instance मतलब उसके objects create करके. So whenever we create object of the class, that means we are accessing the data members and the member functions of that particular class. Okay, so let's see an example. Simple example है. So you can see a diagram is here, and ये block आपको दिख रहा है जिसमें सबसे पहले आपको दिया हुआ है birds. So let's assume कि ये bird जो है वो क्या हो गई? birds की एक पूरी class हमने बना दी, general class. Okay, नाउ इन बर्ड्स के कुछ मेंबर्स होंगे. मेंबर्स मतलब इनके कुछ फीचर्स होंगे. क्या फीचर्स होंगे? कि बर्ड्स को क्या होते हैं? यूजुअली, नॉट एक्सेप्शंस, विंग्स एंड बीक्स. यूजुअली बर्ड्स को बीक्स होते हैं और विंग्स होते हैं. तो ये इसका क्या हो गया? डेटा. ओके, नाउ किसके कितने विंग्स हैं, कितने बीक्स हैं, दैट इज अ डिफरेंट सिनेरियो, एंड दैट विल डिपेंड ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स, जिसको कि हम बोल सकते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स. बट बेसिकली यहाँ पे क्या हो गया? इसका डेटा क्या हो गया? विंग्स और बीक्स. तो इसको हम बोलेंगे डेटा मेंबर्स. ओके, एंड व्हाट विल बी द मेंबर फंक्शंस? इनके अलग अलग प्रॉपर्टीज, जैसे कि फ्लाई, ईट. यहाँ पे दो ही मेंबर फंक्शंस हैं, आप और भी फंक्शंस क्रिएट कर सकते हो. तो ये इसका क्या हो गया? एक तरह से बिहेवियर, हाउ दे आर बिहेविंग. तो ये इसकी एक तरह से हो गई यू कैन से प्रॉपर्टी, कि
फ्लाई बर्ड, इस तरीके की बर्ड कैसे फ्लाई करती है, उस तरीके की बर्ड कैसे फ्लाई करती है, ये बर्ड क्या खाना खाती है, दूसरी बर्ड क्या खाना खाती है, तो ये इसके मेंबर फंक्शंस हो गए. Okay, so this is how you can imagine that what do we mean by class, what do we mean by its data members, and what do we mean by member functions. Okay, so next we will see now कि क्लास को और हम कैसे डिफाइन करते हैं बुकिश लैंग्वेज में. सो क्लास इज ऑल्सो नोन एज, ये आपको बहुत सारी बुक्स में मिलेगा, ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट of anything which declares and defines characteristics and behavior, namely data members and member functions respectively. तो अभी इसी चीज को रेफर करके ये पूरा डेफिनेशन क्रिएट किया गया है. Class is just a blueprint or template which declares and defines characteristics and behavior, namely data members. जो कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर है उसके लिए जो कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे आपके, वो आपके हो जाएंगे डेटा मेंबर्स, और जो आपका बिहेवियर है वो आपका हो जाएगा मेंबर फंक्शंस respectively. And all the objects of this class, इस क्लास के हम जितने भी इंस्टांसेस क्रिएट करेंगे, ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे, they will share these characteristics and behavior. जितने भी हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स इसके क्रिएट करेंगे, इस पर्टिकुलर क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे, लेट्स से obj1 obj2, जो और ऑब्जेक्ट के नाम आप अपने हिसाब से दोगे, तो ये लोग आपस में क्या शेयर करेंगे, इस पूरी क्लास के कैरेक्टरिस्टिक्स और इसका बिहेवियर, दैट मीन्स इसका डेटा, members and इसके functions. So no storage is assigned when we define a class. जब हम क्लास को डिफाइन करते हैं तो कोई स्टोरेज असाइन नहीं होता है, ये सिर्फ तभी असाइन होता है जब हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं. तो इसीलिए इसको रेड मार्क किया है कि whenever we create a class, whenever we define a class, no storage is assigned. मशीन में वो स्टोरेज असाइन नहीं होता है जब हम सिर्फ डिफाइन करते हैं क्लास को. ठीक है, एग्जाम्पल पहले देखते हैं, फिर हम ऑब्जेक्ट देखेंगे. तो अभी यहाँ पे हम पहले ऑब्जेक्ट और क्लास का एग्जांपल देखेंगे, देन वी विल स्टडी कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट और हाउ डू वी डिफाइन ऑब्जेक्ट. सो लेट्स सी द एग्जांपल फर्स्ट. तो आप यहाँ पे ये प्रोग्राम है 1 2 3 4 5 6 लाइंस का. ठीक है, तो सबसे पहले क्लास क्रिएट कैसे करते हैं, तो मैं आपको राइट में करके दिखा रही हूँ, सेम चीज लिख रही हूँ. क्लास को स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं हमेशा. जब भी हमें क्लास डिफाइन करनी है तो हमें ये कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, क्लास स्पेस, हम क्लास का कुछ भी नाम देंगे. तो यहाँ पे नाम दिया है टेस्ट, ये आइडेंटिफायर है, आप कुछ भी नाम दे सकते हो. एंड देन वी विल पुट अ कोलन. ठीक है, कोलन का मीन्स हम ब्लॉक में आ गए. कौन से ब्लॉक में आ गए, क्लास के ब्लॉक में. अब हम यहाँ पे डेटा मेंबर्स डिफाइन करेंगे. अगर आपके पास डेटा मेंबर्स हैं, अगर आप कुछ वेरिएबल्स देना चाहते हो जो कि डेटा मेंबर्स की तरह एक्ट करेंगे, तो वो आप यहाँ पे दोगे. अदरवाइज आप डायरेक्टली डेटा फंक्शन, मेंबर फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हो. तो यहाँ पे डायरेक्टली एक फंक्शन क्रिएट किया है, डेफ. आपको पता है फंक्शन के लिए क्या यूज होता है, और एक फंक्शन का नाम दिया है fun फन. एंड यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट लिया है सेल्फ आर्ग्यूमेंट. ये हमें देना जरूरी होता है जब भी हम पहला फंक्शन क्रिएट करते हैं किसी भी क्लास का, सेल्फ आर्ग्यूमेंट. ओके, और इसके अंदर हमने एक सिंपल सा स्टेटमेंट प्रिंट किया है, प्रिंट हेलो एंड क्लोज इट, एंड देन वी गेट बैक टू द मेन प्रोग्राम. तो ये हमारा क्लास का डेफिनेशन हो गया. ये जो 3 स्टेटमेंट हमने लिखे, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ योर क्लास. इसके अंदर हमने एक फंक्शन क्रिएट किया है, इस फंक्शन को हम बोलेंगे मेंबर फंक्शन, और फंक्शन का नाम है फन, और उसको एक सेल्फ आर्ग्यूमेंट दिया है. Now coming back to the main program, we will create some objects. So हमने एक object create किया, object का कुछ भी नाम आप दे सकते हो, obj हमने नाम दिया, is equal to. Now how do we create an object? We write the name of the variable is equal to, and then we write the name of the class. So this is our class, and then we will put these brackets. So इसका मतलब है हम इस class का object या instance create कर रहे हैं. So now obj is the object. Now this obj, which is object, will be used to access the data members and the functions of the class test. तो अगर मुझे इसको कॉल करना है या मुझे किसी वेरिएबल को यूज करना है जो इस टेस्ट फंक्शन के अंदर, टेस्ट क्लास के अंदर है, so I will use the name obj. Now how we will use it? Let's call this function fun. तो पहले हम फंक्शन कॉल करते थे तो हम डायरेक्ट फंक्शन लिखते थे, बट क्योंकि ये क्लास का पार्ट है और हमने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया obj, so how we are going to use it? We will use it like this, obj dot, we will use the name of the function. तो फंक्शन का नाम क्या है, fun bracket. Okay, so what will be called now? This will invoke this particular function which is inside the class test, because this is the object of class test, and it will print hello. So there must be a there must be a special first argument self in all of the method definitions
which gets bound to the calling instance. ये हमेशा याद रखना है कि जब भी हम कोई भी क्लास क्रिएट करेंगे तो उसका जो भी हमारा पहला फंक्शन होगा उसको हमें सेल्फ आर्ग्यूमेंट देना जरूरी है, या हर एक फंक्शन का फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, स्पेशल फर्स्ट आर्ग्यूमेंट सेल्फ होना चाहिए। सारे मेथड के डेफिनेशन, जितने भी हम मेथड्स बनाएंगे, जितने भी हम फंक्शंस बनाएंगे, ये हम क्यों करते हैं? बिकॉज दिस फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज एन सिंटैक्स, एंड बाय दिस सिंटैक्स बिकॉज इट बाउंड्स इट टू द कॉलिंग इंस्टांस। जो भी हमारा कॉलिंग इंस्टांस होता है उससे इसको ये बाउंड कर देता है। सो दैट इज व्हाई इट इज कंपल्सरी। नाउ लेट्स सी अनदर एग्जांपल। अभी ये दूसरा एग्जांपल है। दूसरे एग्जांपल में आप देखो, सबसे पहले एक क्लास क्रिएट की, ठीक है, क्लास, और क्लास का नाम क्या दिया? स्टूडेंट कोलन। अब स्टूडेंट क्लास बनाइए, तो एक जनरल क्लास हो गई, तो अब इसके हम एक डेटा मेंबर, एक वेरिएबल ले रहे हैं, स्टूडेंट का रोल नंबर। तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल नेम दिया रोल नंबर। तो ये हमारा एक्चुअली क्या हो गया? ये हो गया डेटा मेंबर। और ये डेटा मेंबर किसका है? कौन सी क्लास का है? स्टूडेंट क्लास का। और उसको एक हमने वैल्यू भी दी है। वैल्यू क्या दी है? 5। रोल नंबर एक वेरिएबल लिया जो कि क्लास स्टूडेंट का है और उसको वैल्यू दी 5। देन हमने एक फंक्शन क्रिएट किया। नाउ ये आपका क्या हो गया? fun1। ये फंक्शन क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका मेंबर फंक्शन, ठीक है। नाउ जो भी मेंबर फंक्शन है उसमें पहला आर्ग्यूमेंट हमेशा सेल्फ होना चाहिए। दूसरे आप कितने भी यूज कर सकते हो, बट हमने यहाँ पे एक ही आर्ग्यूमेंट दिया है, तो वो आर्ग्यूमेंट है सेल्फ आर्ग्यूमेंट। और इसके अंदर हमने क्या किया है? प्रिंट रोल नंबर इज, रोल नंबर इज हमने एक स्टेटमेंट दिया, स्ट्रिंग, कॉमा, हमने रोल नंबर वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए, जो कि एक डेटा मेंबर है, कैसे एक्सेस किया उसको? सेल्फ, विच इज योर आर्ग्यूमेंट, डॉट रोल नंबर। दिस इज हाउ इट वर्क्स। आपको ऐसे ही यूज करना है, self dot roll number. Now coming back to the main program, we have created an object. ऑब्जेक्ट का नाम क्या दिया? obj1 is equal to, कैसे क्रिएट किया स्टूडेंट क्लास का? is equal to name of the class and bracket. So it will create the object of this whole class. Now this obj1 will be used to access this roll number as well as the function which is created inside this particular class student. Okay. So अगर मुझे ये fun1, ये जो फंक्शन है, मेंबर फंक्शन है, इसको एक्सेस करना है आउटसाइड क्लास, how I'm going to access it? I will write obj1.fun1. So this will invoke this particular function, and invoke करने के बाद आउटपुट क्या देगा? roll number is, and roll number की वैल्यू हमने यहाँ पे प्रिंट कराई है self dot roll number से, so it will print the output as roll number is 5. This will be the output. Okay, now you might be knowing that what is the job of object, or how do we create object. So let's study now what is object. So object is defined as the real time entity having physical existence. Whenever we create an object, जब भी हम object create करते हैं किसी भी class का, तभी उसको एक्चुअली में मेमोरी एलोकेट होती है, या वी कैन से उसको स्टोरेज मिलता है फिजिकली इन योर मशीन, इन योर डिवाइस। जब आप क्लास डिफाइन करते हो तो क्लास डिफाइन करते वक्त कोई स्टोरेज नहीं मिलता है, लेकिन जब आप उसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो इट क्रिएट्स अ स्पेस, और इट असाइंस अ मेमोरी, it allocates a memory in your storage. Okay, so it is a real time entity. Object की definition है ये, it is a real time entity. Why it is known as real time entity? Because इसी का actual physical existence होता है आपके storage में, आपके main program का. Okay, so object takes up space in memory. Object ही actually में memory में space लेता है, और हम object को logically कैसे लिखते हैं? It is an instance. This is instance of a class. Okay, so let's say car is your class. So car के different objects आप create, कार के बहुत अलग अलग members होंगे, बहुत सारे member functions होंगे, हर कार का अपना अलग feature होगा, but class का name क्या बना दिया? car. Now let's say Mercedes, BMW, Audi, these are different objects. Now Mercedes के अपने अलग features होंगे, BMW के अपने अलग features होंगे, and Audi के अपने अलग features होंगे. So this is how it works. Okay, now let's study what is method and message passing. तो आपने method बना के देखा अभी. A method is a function which is associated with a class. Class के अंदर ही हम method create करते हैं और उस method को हम function बोलते हैं, या फिर हम उसको logically अगर class के terms में बोलें तो उसको हम method बोलते हैं. So it defines the operations that the object can execute which it, when it receives a message. ये एक्चुअली में क्या डिफाइन करता है? जो मेथड हम क्रिएट करते हैं या जो भी हम फंक्शंस क्रिएट करते हैं क्लास के अंदर, ये वो ऑपरेशंस डिफाइन करता है जो ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूट करेगा व्हेनेवर इट रिसीव्स अ मैसेज. जब भी ऑब्जेक्ट को मैसेज दिया जाएगा या ऑब्जेक्ट को कॉल किया जाएगा, ऑब्जेक्ट किसी फंक्शन को कॉल करेगा, तो वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा जो भी उसके अंदर असाइन होगा.
in OOP language, object oriented programming language, only methods of the class can access and manipulate the data stored in an instance of the class. We have already seen कि जो भी हम मेथड या फंक्शन क्रिएट करते हैं क्लास का, सिर्फ वही उस डेटा को यूज कर सकता है जो कि हमने ऑब्जेक्ट के थ्रू क्लास में यूज किया है. टू ऑब्जेक्ट्स, एक ही क्लास के दो अलग अलग ऑब्जेक्ट कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर, दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू मैसेजेस. सो जब भी आपस में मैसेजेस पास होते हैं तो दो ऑब्जेक्ट्स या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक ही क्लास के अलग अलग ऑब्जेक्ट्स जो है वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं बाय पासिंग मैसेजेस. सो एन ऑब्जेक्ट आस्क another object to invoke one of its methods by sending it a message. So ये हम एग्जांपल में करके देखेंगे. Just a second. Okay, now you can see some more examples, like let's say कि आपके पास ऑब्जेक्ट है, क्या ऑब्जेक्ट है, लेट्स से पर्सन. तो पर्सन के ये अलग अलग डेटा या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं और उसके ये अलग अलग फीचर्स या मेंबर फंक्शंस हो सकते हैं. स्पीक, वॉक, लिसन एंड राइट. सिमिलरली अगर हम अकाउंट एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, दैट मीन्स इट इज अ क्लास एंड इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया, तो टाइप उसका क्या क्या हो सकता है या डेटा उसका क्या क्या हो सकता है, अकाउंट का क्या हो सकता है कि विच टाइप ऑफ अकाउंट, देन नंबर, देन बैलेंस, देन उसके फंक्शंस या मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं, डिपॉजिट, विदड्रॉ एंड डिफरेंट अदर फंक्शंस आल्सो. सिमिलरली व्हीकल अगर एक क्लास है तो एक व्हीकल को अगर क्लास बनाया तो उसका ऑब्जेक्ट अगर हम जब क्रिएट करेंगे तो अगर डेटा हमारे पास या जो उसके वेरिएबल्स हैं वो हमने क्रिएट किए, नेम ऑफ द व्हीकल, कंपनी ऑफ द व्हीकल, मॉडल, कलर, तो उसके फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं, स्टार्ट एंड स्टॉप. These are just examples to make you understand that what do you mean by attributes or data and what do you mean by member functions. Okay.